السلام علیکم. آج 5 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سعدیہ غوث. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات. اس حوالے سے چنیوٹ میں بھی کارروائیاں جاری ہیں. ضلع بھر میں اب تک 28 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے عمر سجاد سے. عمر سجاد بتائیے گا کس حد تک اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی بالکل. اس وقت میں ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود ہوں. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ میں بھی اسموگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی ہدایات پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آسم جوید صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. سر کارروائیاں کی گئی ہیں, کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسموک بڑی ہی خطرناک ہے. اس کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں, لنگز کے ایشوز ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہیں. استھما بھی جو ہے نا اسموک کی وجہ سے کاز ہو سکتا ہے. اسموک کے حوالے سے ہم نے جو کارروائیاں کی ہیں ابھی تک 28 لاکھ سے زیادہ ہم جو ہے وہ فائن کر چکے ہیں, جن میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے اوپر بھی ہم نے فائن کیا ہے, برک کلنز کے اوپر فائن کیا ہے. اسی طرح سے ایسی گاڑیاں جو کہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے فائن جو ہے وہ امپوز کیا ہے. جی بالکل. آپ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ 28 لاکھ سے زائد جو ہے جرمانے عائد کیے گئے ہیں اور مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. جی دنیا پور میں اسموک کے باعث ہونے والے حادثات روکنے کے لیے آگہی مہم جاری ہے. اس حوالے سے ڈرائیورز میں پمفلیٹس تقسیم کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری زاہد محمود سے. جی بالکل. ڈی آئی جی ٹریفک لاہور کے احکامات کی روشنی میں دنیا پور میں ڈرائیور حضرات کو موسم کی تبدیلی کے باعث دھند اور خوف کی وجہ سے آگاہی دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ اس پر ٹریفک انچارج موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کے حکام کے مطابق جو اسموک کا سیزن جو آنے والا اسموک کا سیزن ہے اس میں جو ہے نا دھواں چھوڑنے والی گاڑی کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی گاڑیوں کو بر وقت ٹھیک رہیں جو کہ دھواں آلودگی کا باعث نہ بنے. بالکل. یہ آپ نے ٹریفک انچارج کی بات ہوئی جس کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور پر جو ہے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کمپلیٹ بھی تقسیم کیے گئے. ہیلمٹ کے استعمال انتہائی ضروری ہے تاکہ حادثات کی بچا جا سکے. جی ضلع بدین کے علاقے سنی گھونی میں پانی کی شدید کمی کے باعث علاقے کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران عباس سے. دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں بدین کی ہی یو سی بیڈمی کے علاقے سنی گھونی میں. یہ شاخ جو ہے وہ سنی گھونی شاخ کہلاتی ہے اور آپ فوٹیجز میں واضح طور پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سوکھی ہوئی ہے. علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال سے اس شاخ میں پانی نہیں آ رہا ہے, جس کے باعث یہاں پر علاقہ مکین جو ہے وہ جو پینے کا پانی ہے اس کے لیے بھی شدید پریشان ہے. پانی کا 12 مہینہ ہوا ہے تو ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے, بالکل نہیں مل رہا ہے. ایک قطرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں شاخ کے نیچے بیٹھے ہوئے پانی نہیں مل رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے جو غور لیتے ہیں وہ پانی تو دو بیچاروں کو, اور تو نہیں کچھ نہ پانی ہو کہ یہ اپنی آبادی زمین کو ہموار کریں یا اپنے بچوں کا پالنا کریں. علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہی اب ان علاقوں کا جو ہے وہ رخ نہیں کر رہے ہیں. یہ علاقہ جو ہے وہ ٹیل اینڈ کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پھر انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو علاقہ مکین ہے وہ پانی کے لیے اس وقت شدید پریشان ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد یہاں پر پانی دیا جائے تاکہ پینے کا پانی بھی انہیں میسر ہو سکے, ساتھ میں جو زرعی اراضی ان کی ہے وہ بھی سیراب ہو سکے. ٹھٹا میں گورنمنٹ پبلک سکول مکلی کے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں. طلبہ احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں. ٹھٹا سے امر لال کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پبلک سکول مکلی میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف اسکولی طلبہ اور والدین سڑکوں پر نکل رہے. اسکول انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے قومی شرح بلاک کر دی. بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول نہ ملنے, اسکول کا چوکیداری نظام ناقص ہونے کی وجہ سے بچے گھیر محفوظ ہیں. اسکول میں پیون نہیں ہے اور نہ کوئی سویپر ہے نہ صفائی ہے, بچوں کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہم سارے پیرنٹس یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی سکیورٹی کے لیے کچھ نہ کوئی بندوبست کیا جائے. ہم مسلم حکومت سے اور وزیر تعلیم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس اسکول میں پڑھنے والا اور سکیورٹی مہیا کی جائے. والدین اور سول سوسائٹی نے وزیر تعلیم سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گورنمنٹ پبلک اسکول مکلی کے مسائل حل کیے جائیں. امر لال, آج نیوز ٹھٹا. نواب شاہ میں موسم سرد ہوتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. شہریوں خصوصاً خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے کاشف ضیاء. جی نواب شاہ میں موسم سرد ہوتے ہی گیس کے پریشر میں کمی اور بعض اوقات گیس نہ ہونے کی شکایت عام ہو چکی ہیں.
अब ये हर एक घर का मसला बन गया है और सुबह के औकात में और खाने पकाने के औकात में गैस के प्रेशर इंतहाई कम कर दिया जाता है और बाज़ औकात गैस ना होने के बायस भी नाश्ते के औकात में स्कूल जाने वाले बच्चे बाज़ औकात भूखे भी जाने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी जानिब ख़वातीन ने मुतालबा किया है कि गैस के प्रेशर को नॉर्मल किया जाए ताकि उन्हें खाने पकाने के में होने वाली मुश्किलात दूर हो सके। जी। शरकपुर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद बता रहे हैं सैयद अली नकवी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है और आए रोज अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है और घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से जानते हैं शहरी क्या कहते हैं। टाइम से घ्यो और ऑयल बहुत ज्यादा महंगा हो जाए जिनकी वजह तो आवाम जी बड़ी परेशान है, लिहाजा इनकी कीमत फौरी तौर पर डाउन की ताकि आवाम सख्ता साल है। स्पेशली घी की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि क्योंकि आम आदमी भी घी का इस्तेमाल करता है तो लिहाजा इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है घी की कीमतों में, अब बंदा परेशान है कि क्या इस्तेमाल करे। आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि घी और दूसरी चीजों की कीमतों में मसलसल इजाफा हो रहा है और कुकिंग ऑयल की कीमत 400 से लेकर 420 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत कुकिंग ऑयल की कीमतों को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। जलालपुर पीरवाला में मौसम सरमा शुरू होते ही लुंडा बाजार की रौनकें बढ़ने लगी हैं। गरम मलबूसात समेत जरूरत जिंदगी की दीगर चीजें भी आम मार्केट से सस्ती दस्तयाब होने पर लुंडा बाजार में शहरियों का रश है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मौसम सर्द होते ही जो लंडा मार्केट है वो सज गई है। यहाँ पर हर चीज मिल जाती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महंगाई की वजह से कुछ रेट इसके भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जो मार्केट है मार्केट की निस्बत यहाँ पर सस्ता आइटम मिल जाता है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बाजार से चीजें कम रेट पे मिलती है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे लंडा लगाते हैं, आपको हर चीज मिलेगी, दस्तयाब मिलेगी। बाजार से कुछ महंगाई तो बढ़ चुकी है पर हमें भी पीछे से महंगा मिलता है, पर बाजार की निस्बत से फिर भी हमारे पास कम रेट वाली चीजें मिलेगी आपको। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पीछे से जो रेट ज्यादा मिलते हैं, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है, मगर फिर भी यहाँ पर मार्केट से रेट कम मिलते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर हर चीज मिल जाती है जो जरूरत होती है, जरूरियात जिंदगी सब चीज यहाँ अवेलेबल है। जी। लाहौर कसूर रोड टूट फूट का शिकार हो गया। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना है। हादसा भी रोज का मामूल बन गए हैं। मजीद बता रहे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान फैजी। जी बिल्कुल, लाहौर कसूर रोड पर बने ये टूल प्लाजा से रोजाना लाखों रुपए जो है टूल टैक्स इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अरसा दराज से लाहौर कसूर रोड जो है टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर शहरियों के तासरात जानते हैं, वो क्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम रोजाना ही गुजरते हैं, 20 रुपए हम यानी कि टोल प्लाजा दे के जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे जमा हो रहे हैं, लेकिन ये जिला इंतजामिया कोई भी है जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है। जनाब असं 20 रुपये डेली देने, सारी सड़क खराब है, फिर भी सड़क नहीं बनती पई। कई दफा लंबी लाइन लग जाती, सानू लंबी लाइन का सामना करना पैंदा। कई दफा हादसे भी इत्थे होंदे ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर गुजरने वाले शहरियों के आपने तासरात जाने। उनका कहना है कि यहाँ पर टूल टैक्स की मदद से रोजाना के पैसे लिए जाते हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन अरसा दराज से लाहौर कसूर रोड टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया चाहिए कि रोड की भी मरम्मत की जाए ताकि गाड़ियों के नुकसान और एक्सीडेंट से बचा जा सके। चिन्योट में दीगर अशिया खुरोनोश के बाद अब दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे उमर सज्जाद। बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी अशिया खुरोनोश की कीमतों के बाद दूध और दही की कीमतों को पर लगे। इस वक्त मैं दूध और दही की मार्केट में मौजूद हूँ, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आए रोज दूध और दही की कीमतों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह क्या है, क्या बताएंगे दूध और दही की कीमतें बढ़ाती हैं। क्या करें जी, बिल कहाँ से उतारें। ये शापर 250 रुपए किलो था, 400 रुपए किलो हो गया। पेट्रोल 70 रुपए 80 रुपए लीटर था, 150 रुपए लीटर हो गया, वो भी 210 रुपए भी आज नहीं मिला।
बड़ी मुश्किल से, और जो डेयरी फार्मर है वो बिल्कुल तआवन नहीं करते। हम कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इसी तरह चनियोट के शहरियों ने जो है वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि पंजाब में बढ़ती हुई महंगाई, अशिया खुर्रनोश की कीमतें, आटा, घी, चीनी और अब दूध की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। चनियोट के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फिफौर महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। सर्दी आते ही डंडोल अयार का लुंडा बाजार भी महंगा हो गया है। महंगाई की वजह से शहरियों के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी मुश्किल हो गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल लतीफ काइम खानी से। मैं इस वक्त जो है लुंडा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक दुकानदार से मालूम करते हैं कि सर्दी की आमद हो गई है, लेकिन जो है खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि खरीदारों का रुझान जो है कम है इस वक्त? जी बताइएगा। जी भाई, अभी क्या है कि महंगाई है और महंगा माल आया है और ग्राहक जो आते हैं वो कम भाव में पूरी मांग रहे हैं पुराने रेट में। जी आपने सुना कि जो है महंगाई की वजह से जो है कि खरीदार जो है कम है, खरीदार जो है बहुत कम रेट लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि महंगाई जो है बहुत है, इसलिए हमारी पहुंच से जो है बाहर है लुंडा भी। जी खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। कराची में ZIDC में टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीकी माहिरीन तालीम हबीब कादिर और डॉक्टर इखलास अंसारी ने तालीमी निजाम को जदीद तरीन बनाने के लिए असातिज़ा को तरबियत फराहम की। तलबा ने डायनासोर्स कॉस्ट्यूम पहनकर रैंप पर परफॉर्मेंस भी पेश की, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। वर्कशॉप में फाउंडर प्रेसिडेंट ज़िशान अल्ताफ लोहिया और MD सबूही ज़िशान ने अमरीकी माहिरीन तालीम का पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया और तरबियती सेशन के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। रहीम यार खान में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 11 खतरनाक गैंग्स के 43 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान संगीन नौयत की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से जायद नकद रकम, गाड़ियां और मोबाइल फोन्स बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी। पंजाब भर की तरह झंग में भी खाद के बहरान का काश्तकार को परेशान कर रखा है। खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया सरकारी रेट पर सस्ती खाद फराम करने में नाकाम नजर आती है। झंग से वहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब भर की तरह झंग में भी खाद के बहरान का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। जिला भर में खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है, जिससे काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि अगर खाद का बहरान खत्म न किया गया और काश्तकार को सस्ते दामों खाद फरोख्त न की गई तो गंदम की पैदावार मुतासर होगी और मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। फसल खली है, ये फसल सिर्फ खाद के पीछे खली है। खाद इसमें नहीं पई गई, पट्ठे साढ़े किसी काम दे नहीं हो गए और अगे हूं गंदम दी काश्त आ गई है वारी, उसमें खाद नहीं मिल रही भाईजान, तो लिहाजा कोई नहीं जड़ा है किसी काम का हिसाब करना। आटा जड़ा है वो बहुत भाईजान महंगा हो जाना, तो आटा गरीब बंदा कितों ले सकते भाईजान। काश्तकारों ने इंतजामिया से गवर्नमेंट रेट पर खाद की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने का मुतालबा किया है। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। कोरोना वैक्सीन लगवाइए वरना बुलवाली जाएगी। सक्खर में महकमा सेहत ने वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ पुलिस की खिदमात हासिल कर ली। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की मदद से लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील बताइएगा। ये हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने के लिए अब पुलिस की मदद हासिल कर ली है। महकमा सेहत जो है इस वक्त जो है मुख्तलिफ चौराहों पर खड़े होकर पुलिस के जरिए जो है लोगों को रोक रही है, मोटरसाइकिल सवारों को, कार सवारों को और दीगर लोगों को रोक रही है कि वैक्सीन जिन लोगों ने जिनके पास कार्ड नहीं है वैक्सीन लगाने वाले, उन्हें रोककर वैक्सीन लगाई जा रही है। तो बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ रोका जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है। ये कई रोज से जारी है और अब जो है पुलिस के जरिए जो है वो लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और मुख्तलिफ चौराहों पर जो है पुलिस जो है वो महकमा सेहत की मदद के लिए यहाँ मौजूद है। जी, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी के बाद सरगोधा में शहरियों ने कोरोना वैक्सीनेशन को नजरअंदाज कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पर अमला शहरियों की राह तक रहा है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे जहूर शाहिद से। जहूर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये अम्बाला मुस्लिम कॉलेज में हम मौजूद हैं। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कैंप है और अब काफ़ी वक्त हो गया है वैक्सीनेशन सेंटर को खोले हुए और यहाँ का अमला मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन कराने वाले जो है वो नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि एक तो डोर टू डोर जो है वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस हवाले से जो है आगाही मुहिम शुरू की जाए ताकि लोग जो है कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराएं। जी शुजाबाद में भी इंसदाद खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन का आज आखिरी रोज है। बच्चों को वबा से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। मजीद जानते हैं राव जाहिद से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस में, जहां हुकूमत पंजाब की जानिब से 9 माह से 15 साल के बच्चों को खसरा और रुबीला से बचाव के लिए वैक्सीन का अमल शुरू कराया गया है। मेरे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के फोकल पर्सन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि अब हुकूमत पंजाब की जानिब से कितना टारगेट मुकर्रर किया गया था बच्चों के लिए और अब तक आपने कितना टारगेट हासिल किया है? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी MR की ये कैंपेन 15 नवंबर से 27 नवंबर तक होना थी, जिसका आज 11वां दिन है और हमें 12 दिन के लिए 2,67,000 बच्चों का टारगेट दिया गया था, जिनकी उम्र 9 महीने से लेकर 15 साल तक थी। और आज 11वें दिन तक हमने 2,57,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है और 10,000 बच्चे अभी बाकी हैं जो इंशाल्लाह आज के दिन में कवर हो जाएंगे। मेरे तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अभी तक जिन बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हुआ वो उनको हमारे मराकज़ सेहत पर और जहां जहां हमारी टीमें बैठी वहां तशरीफ लेकर आएं और अपने बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कराएं। जी, इस मूजी मर्ज से बचने के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो करीबी सेंटर्स पर आकर अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं ताकि उनकी कीमती जानें बच सकें। जी जलालपुर पीरवाला में भी इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम का आज आखिरी रोज है। हुकाम का कहना है कि मतलूबा हदफ के मुताबिक बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। खसरा और रुबेला के जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है उसका आखिरी दिन था। मैं कुछ ये बताता चलूँ कि महकमा सेहत की जानिब से 2,30,000 का टारगेट था। आगाही की वजह से जो इससे ज्यादा इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। इसमें महकमा सेहत के साथ साथ NGOs के नुमाइंदे, सोशल मोबिलाइजर भी आगाही दे रहे थे। मेरे साथ कुछ NGOs के नुमाइंदे मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ पे देख के कि जो हमारा टारगेट था उससे भी तकरीबन हम लोग ज़्यादा अचीव कर चुके हैं और 110% के करीब हम लोग टारगेट अचीव कर चुके हैं। 2,30,000 जो हमारा टारगेट था उससे हम लोग ज़्यादा अचीव कर चुके हैं और इसमें यही है कि हम लोग इसको मजीद बेहतर करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 110% यहाँ पर वैक्सीनेशन की गई है और दूसरा ये बताया है कि जो भी हुकूमत की तरफ से हिफाजती टीका जाते हैं उसको जरूर लगवाएं। जी हालिया में मुल्क के अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का एहतमाम मकामी समाजी तंजीम की तरफ से किया गया। मजीद बता रहे हैं हालिया से हमारे नुमाइंदे तनवीर हुसैन साबिर अपनी इस रिपोर्ट में। सोशल वेलफेयर तंजीम के ज़ेरे एहतमाम अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को वतन अजीज की खिदमत पर खराज तहसीन पेश करने के लिए फालिया में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा तालबात ने मोहसिन पाकिस्तान की खिदमत को सराहा। तो हम जो आज अपने सरजमीन में अकड़ के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हम उनको ललकार रहे हैं, तो ये सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही की मरहून मिन्नत है। हम आराम से सितारों पर कमंदे डाल सकते हैं क्योंकि सरहदें महफूज हों और अब्दुल कदीर खान ने हमारी सरहदें महफूज कर दी। तकरीब में हाजरीन मारूफ शायर सैयद हसनैन मोहसिन की शायरी से खूब महजूज हुए। कमल दे सामने कमल लाखन मुनासिब नहीं, मैं डाढ़ ढोला तंडे बाजू गजल लाखन मुनासिब। तंजीम के सदर डॉक्टर अली शाह का कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के हीरो को ट्रिब्यूट पेश करना था। तो आज के प्रोग्राम का मकसद बुनियादी तौर पे बच्चों में कॉन्फिडेंस को डेवलप करना था और आज के प्रोग्राम में हमने जो मौजू रखा था वो था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उनको हमने ट्रिब्यूट पेश किया। इस तरह के प्रोग्राम करके बच्चों के टैलेंट को उजागर करने के साथ साथ अपने हीरोज की खिदमत को याद रखा जा सकता है। तनवीर हुसैन साबिर, आज न्यूज, फालिया। सांगड़ के डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें शहदादपुर, टंडो आदम और शाहपुर चाकर के कॉलेजेस के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। अब्दुलरहमान खासखेली की रिपोर्ट देखते हैं। रीजनल डायरेक्टर शहीद बेनजीर आबाद प्रोफेसर शाहिदा परवीन अबड़ो की जानिब से इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें सांगड़, शाहपुर चाकर, टंडो आदम, शहदादपुर के कॉलेजेस के तुलबा व तालबात ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट फेस्टिवल में क्रिकेट, वॉलीबॉल, थ्रू बॉल, टेबल टेनिस,
एथलेट्स के खेल खेले गए। इस मौके पर सांगड़ कॉलेज इन मुकाबलों में सरे फहरिस्त रहा। कि हम हमारे सांगड़ के बच्चे आगे जाएं, जितना हो सके आगे जाएं और यहीं से आगे बच्चे निकलेंगे नेशनल इंटरनेशनल के लिए। और क्योंकि फुकदान है हमारे पास एथलेटिक्स का स्पेशली, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में इससे भी बढ़ चढ़कर बच्चे जो है वो हिस्सा लेंगे। ग्राउंड का सबसे बड़ा फुकदान है, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है क्योंकि कॉलेजेस में बजट का प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम कहां पर प्रॉपर जो है गेम्स करवा सकते हैं बच्चों को, जबकि इक्विपमेंट ही नहीं होगा, ग्राउंड ही नहीं होगा, तो हम इंटरनेशनल सतह पर कैसे टीमें भेज सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे इंटरनेशनल मैचेस जो हो रहे हैं, एथलेटिक्स अभी हुआ, पहले टोक्यो वाला इवेंट हुआ, तो वहां पर भी हमारा सबसे बड़ा इशू क्या था, यही कि हमारे पास प्रॉपर ना जिम है, ना प्रॉपर हमारे पास इक्विपमेंट्स है, ना ही बच्चों को जराए मौजूद है। ये होने चाहिए काम और माशाल्लाह से ये काम बहुत बेस्ट है। और एज ए कोऑर्डिनेटर मैं आपको बता रही हूँ कि ये होना चाहिए। और पहली मर्तबा बॉयज कॉलेज में सांगड़ में ये काम हुआ है। और ये इस मौके पर स्पोर्ट फेस्टिवल में आए हुए तलबा व तलबात ने इन गैर निसाबी सरगर्मियों को खूब सराहा और कहा कि ऐसे गैर निसाबियां सरगर्मियां होनी चाहिए ताकि हम खेल कूद कर निसाबी सरगर्मियों में भी बेहतर अपना काम कर सकें। अब्दुर्रहमान खास खेली, आज न्यूज सांगड़। उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया गया। ट्रॉमा सेंटर 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। रिपोर्ट करें शहबाज शाहीन। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उकाड़ा में आज ट्रामा सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया गया। सलीम सादक ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने हमारी रिक्वेस्ट पर ट्रामा सेंटर का तोहफा दिया। ट्रामा सेंटर 4 करोड़ 86 लाख रुपए तखमीना लागत है और ये 1 साल में तमीर होगा। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने हबीब पाक के सदके करम के आज ट्रामा सेंटर की संगे बुनियाद रखी जो कि 10 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ बनेगा। उकाड़ा के 38 लाख लोगों के लिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तानी इमरान खान साहब का, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर महार अख्तर खान बलोच का कहना था कि ट्रामा सेंटर के क़याम से जिला के अवाम को तमाम तर सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयसर होंगी। शहबाज शाहीन, आज न्यूज, उकाड़ा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज न्यूज। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं जैकबाबाद के जेम्स अस्पताल में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें शुरा को ज़ियाबतीस और इससे बचाव की आगाही फराहम की गई। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्बास मस्तोई से। जी अब्बास। हाँ जी बिल्कुल, जैकबाबाद के सबसे बड़ी जिम्स अस्पताल में डायबिटीज के मरीजों को मुफ्त मालूमात फराहम करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार की मेजबानी डायरेक्टर जिम्स डॉक्टर अब्दुल वाहिद ट्रगर ने की। सेमिनार में गंबर अस्पताल के मशहूर डॉक्टर अबरार ने भी शिरकत की। इस हवाले से डायरेक्टर जिम्स का कहना था कि जिम्स अस्पताल जैकबाबाद का वाहिद अस्पताल है जहाँ पर शुगर के मरीजों को अवदियात और इंसुलिन भी मुफ्त फराहम की जा रही है। डायरेक्टर जिम्स का कहना था कि सेमिनार कराने का मकसद जो है शुगर के मरीजों को मालूमात फराहम करना है। उसका मजीद कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्स अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलियात जो है फराहम कर सकें ताकि जो गरीब अफराद हैं वो ज्यादा मुस्तफिद हो सकें। जी सरगोदा में शहरियों की शिकायत पर इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। कम वजन की रोटी बेचने वाले होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे जहूर शाहिद। जी बिल्कुल, यहाँ अवामी शिकायत पर इंतजामिया एक्शन में आई है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट CO खालिकदाद गाड़ा ने यहाँ पे एक्शन करते हुए मुख्तलिफ जो होटल है उन पे छापे मारे हैं और किसी भी होटल पे जो है रोटी का वजन पूरा नहीं। यहाँ पे सरगोदा में रोटी का जो म्यारी वजन है वो 100 ग्राम मुकर्रर किया गया है और जो होटल पे रोटियों का वजन चेक किया गया है तो एक होटल पे 88 ग्राम, एक पे 74 ग्राम, एक पे 70 ग्राम, इस तरह का वजन जो है कम वजन रोटी जो है वो ग्राहकों को बेची जा रही थी। इस पर एक्शन लेते हुए प्राइस मजिस्ट्रेट ने उन होटल मालकान को वार्निंग भी दी है और उनको मौके पर जुर्माने भी किए हैं। जी सर्दी में इजाफे के बाद रायगढ़ में मछली बाजार सज गया। शहरी बड़ी तादाद में बाजार का रुख करने लगे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद रायगढ़ में मछली बाजार कायम हो चुका है जहां पे शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मछली खरीदने में मसरूफ है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
خریداری کے لیے آئے ہیں. یہ برائلر مرغی اس کا ریٹ کافی تیز ہے. سوچا کہ چلو مچھلی لے جائیں. مچھلی اس میں غذائیت کافی ہوتی ہے. ریٹ اس کا بھی بہت زیادہ ہے. برائلر اور مچھلی کی ریٹوں میں زیادہ فرق نہیں ہے, تو گھر والوں کی چوائس ہے کہ مچھلی لے لیں. تو یہ غذائی سے بھی بھرپور ہوتی ہے, وائٹامنز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو گھر والوں کی زیادہ چوائس ہے. سردیوں میں زیادہ مچھلی کھائی جاتی ہے اور اس میں وٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے. برائلر کا ریٹ تو بہت زیادہ ہے, اس کے علاوہ مچھلی کا بھی ریٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ بات آپ نے سنی, ان کا کہنا ہے کہ غذائیت سے بھرپور مچھلی کا سیزن چل رہا ہے, اس لیے وہ برائلر مرغی کی بجائے مچھلی کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے مچھلی خرید کر لے کر جا رہے ہیں. جی. سوات کے طالب علم نے قوت بصارت سے محروم افراد کی زندگی آسان بنا دی. ایسے جوتے تیار کر دیے جو دوران سفر خطرات سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوں گے. انور انجم کی رپورٹ دیکھتے ہیں. وادی سوات کے سیاحتی علاقے ملم جبہ سے تعلق رکھنے والے 10ویں جماعت کے طالب علم وسیع اللہ نے ٹوٹی پوٹی کھلونوں کی پرزے جوڑ کر بینائی سے محروم افراد کے لیے ایسے اسمارٹ جوتے تیار کیے ہیں جو نابینا افراد کو 120 سینٹی میٹر کے دائرے میں آنے والی ہر رکاوٹ سے آگاہ کرتے ہیں. میں نے جو یہ اسمارٹ شو بنایا ہوا ہے یہ بیسکلی نابینا افراد کے لیے ہے. یہ نابینا افراد کو سپورٹ کرتا ہے. اگر نابینا افراد اس کو پہنے اور چلتے ہیں تو وہ بہت بآسانی سے چل سکتے ہیں. یہ اسمارٹ شوز نابینا افراد کو 120 سینٹی میٹر تک کے فاصلے میں کسی بھی رکاوٹ سے وائبریشن اور آواز کے ذریعے آگاہ کیا جا سکتا ہے. ان اسمارٹ جوتوں کی وجہ سے بینائی سے محروم افراد کو چلنے کے لیے چڑی یا گائیڈ کی ضرورت نہیں رہے گی. ان میں رکاوٹ کو محسوس کرنے والے سینسر اور نئی ٹیکنالوجی پر مشتمل آرڈینو بورڈ لگائے گئے ہیں جو چلنے کے دوران میں نابینا افراد کو چوٹ لگنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اس پروجیکٹ کے بنانے میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے. میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے, تو یہاں یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے. میں نے تھوڑے پیسے اکٹھی کیے اس کے لیے اور پھر میں نے اسمارٹ شوز پر خرچ کیے. اس سے پہلے اس قسم کے جوتے ویانا میں بھی بنائے جا چکے ہیں. وسیع اللہ کی تیار کردہ یہ اسمارٹ جوتے نظام شمسی سے بھی چارج کیے جا سکتے ہیں. اگر حکومت اس ننھے سائنسدان کی حوصلہ افزائی کرے تو یہ نہ صرف اپنے علاقے بلکہ پوری ملک کا نام روشن کر سکتا ہے. انور انجم, آج نیوز سوات. ادھر چنیوٹ میں ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور پر تشدد میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز آج نیوز نے اس واقعے کی خبر نشر کی تھی جس کے بعد پولیس حکام نے نوٹس لیا ہے. اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے عمر سجاد سے. عمر سجاد, بتائیے گا مزید کیا کارروائی ہوئی ہے؟ جی بالکل, چنیوٹ جھنگ روڈ شوگر مل کے سامنے پولیس اہلکاروں کا غریب ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور پر تشدد کے واقعے کی جو خبر ہے وہ آج نیوز پر چلی, جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ نے فوری نوٹس دیتے ہوئے تشدد کرنے والے دونوں پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. پولیس اہلکاروں کا نام جو ہے صفدر اور اللہ رضا بتایا گیا ہے. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ بلال افتخار سے یہ بھی کہنا تھا کہ محکمے میں کسی بھی پولیس اہلکار کو ناجائز اختیارات استعمال ہرگز نہیں کرنے دیے جائیں گے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمر سجاد. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے آج نیوز.